स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर के सरकारी स्कूलों पर एसडीएमसी महाअध्यक्ष बने शकील बागमारे। आज बीजापुर के सरकारी स्कूल नंबर 1 में नगर के 17 क्लस्टरों पर एसडीएमसी राज्य अध्यक्ष सिद्धलिंगप्पा और जिला डाइट प्रिंसिपल बोंगाले के नेतृत्व में आयोजित सभा में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए तमाम 17 क्लस्टरों के शिक्षकों, सीआरसी और एसडीएमसी के अध्यक्ष और मेंबरों की उपस्थिति में मतदान की प्रक्रिया करके नियम अनुसार 17 क्लस्टरों पर महाअध्यक्ष स्थान के लिए इन सब से स्वयं प्रेरित मत चलाकर महाअध्यक्ष स्थान पर समाज चिंतक और पत्रिका उद्यम में समाज सेवा का नेतृत्व संभालने वाले शकील बागमारे को चुनाव नतीजों के आंकड़ों पर एसडीएमसी महाअध्यक्ष स्थान के लिए चुना गया। अध्यक्ष स्थान का प्रमाण पत्र लेकर पद संभालते हुए शकील बागमारे ने कहा कि सरकारी स्कूलों में नया बदलाव लाने का संकल्प उठाते हुए ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाने का विश्वास जताया। इस संदर्भ में जुबेर केरूर जिला नौकर संघ अध्यक्ष शेरशाह सर और नगर के शिक्षण विभाग अधिकारी सीआरसी के अलावा बड़ी संख्या में एसडीएमसी चेयरमैन, मेंबर्स और शिक्षक पहली बार 17 क्लस्टरों पर चुनायित महाअध्यक्ष स्थान के ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಂತರ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯರ ಅವರು ಈ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸವೆದು ಹೋಗ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಎನ್ಸಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ. ಎಲ್ಲ ಈ RT ಯಾವ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅವರು ಸೇರದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಾತನ್ನ ಗಮನಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. SDMC ಸಂಘಟನೆ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಿದೆ ರೀ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು, ನಾವೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆತೀವಿ ತಂದು ಆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಕೋಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಮಗು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಶೂನ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ABCD ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗು ಶಿಸ್ತಿಂದ ಕಲೀಲಿ ಅಂತಂದು ಈಗ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಓದರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ತೆರೆಯುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದು SDMC ಪುನರಾರಚನೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹಂತದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ಹಂಗೆ ಆಕೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು ಅದರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಂತ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ರು, MLA ಭಾಗವಂತ ಸಾಹೇಬರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾನು ಅವ್ರದೈತಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು SDMC ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ सर ने जो भी कहा मैं उस काबिल तो नहीं हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ करूँ। दरअसल बात यह है कि सरकारी स्कूलें जो हमारे कई पीढ़ियाँ सरकारी स्कूल से ही आए हैं, जो हमारे बाप दादा हो सभी हो, हम 4 पीढ़ियों के तो नाम भी नहीं गिन सकते आज। तो बात कहने की यह है कि वही गवर्नमेंट स्कूल से यहाँ पर कई टीचर्स मौजूद हैं, मगर हमारा हाल ये हो चुका है
कि हम टीचर्स भी, मैं सभी करके नहीं कहता, हम टीचर्स भी वजह है कि हम भी प्राइवेट स्कूल को जा रहे हैं। मेरा मकसद यही है, मैं ये टास्क के तौर पर मैं वहाँ का चेयरमैन बना हूँ, मेरा बनना मकसद नहीं था, मगर मेरा बनना इसलिए मकसद है कि मैं चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल का मैं एक एसडीएमसी अध्यक्ष बनकर मैं ये कर दिखाऊं जो प्राइवेट स्कूल जो करते हैं। आज जो प्राइवेट स्कूल में जो रौनकें दिखाई देते हैं आपको, किस तरह से वहाँ पे स्कूल रहते हैं, माहौल रहते हैं, गार्डन, जैसे कि हमारे अध्यक्ष साहब ने इनके व्हाट्सएप में देखा, बहुत खुशी की बात है कि आप अगर इनके व्हाट्सएप में इनकी स्कूल देखेंगे, वो साहब को यकीन नहीं होगा कि वो सरकारी स्कूल है, बल्कि प्राइवेट स्कूल से भी भारी है। ऐसे लग रहा है कि कहीं पिकनिक गए हुए हैं, इस तरह उन्होंने बनाया है। मैं अध्यक्ष का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने इस तरह की एक संगठन बनाने का भी सोचा कि एसडीएमसी मेंबरों को हर शहर से जुड़ाकर एक ऐसी एसडीएमसी बॉडी बनाया जाए जो प्राइवेट सरकारी स्कूल को अपनी स्कूल समझे। दरअसल हमारा माहौल ये हो चुका है कि हम सरकारी स्कूल को अपनी स्कूल नहीं समझते। तो मेरी अजीजाना गुजारिश है उन टीचरों से, उस एसडीएमसी सदस्यों से जिन्हें एसडीएमसी सदस्य की कुर्सी दी गई है, मैं उन सभी से कहूंगा कि आप उस स्कूल को अपनी स्कूल समझे। और जहां पर आज प्राइवेट जो सरकारी टीचर्सों को प्रॉब्लम है, यहाँ पर तादाद हमारी कम होने की वजह से 3 महीने में एक टेंशन आपको आ जाता है कि एचयूरी होने वाली है। इस एचयूरी से बचने के लिए आप टीचरों की भी जिम्मेदारी है कि एसडीएमसी सदस्यों को जो भी हैं उन्हें हर महीना एक मीटिंग लें, उनको बुलाएं, वहाँ की समस्या समझाएं, ताकि वो स्कूल ज्यादा से ज्यादा उस स्कूल में बच्चियां आए, बच्चे पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारे सरकारी स्कूल रहें। क्योंकि परेशानी यह है कि सरकारी स्कूल को मान्यता गरीबों के स्कूल ही कहा जाता है, मगर ये दरअसल गलत है। क्योंकि हमें यकीन है कि आप जो भी सरकारी स्कूल में जो टीचर हजरात हैं, हम अपनी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से क्वालिफाइड टीचर्स हैं। हमें गर्व है तुम पर कि आप पूरी तरह से क्वालिफाइड टीचर्स हैं और हमें यकीन है कि आप उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पढ़ाना चाहते हैं, मगर मामला यह है कि वहां पर बच्चों की तादाद कम है। तो मेरी अजीजा गुजारिश है कि मैं जो एसडीएमसी चेयरमैन बनकर मैं खुद ये चाहता हूं कि मैं पहले जिस स्कूल का मैं सदस्य हूँ, प्रेसिडेंट बना हूं, उस स्कूल को, उस जितने भी सरकारी बीजापुर स्कूलें हैं, उन स्कूलों से भी बेहतरीन बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इंशाल्लाह दुआ करें कि 3 नंबर स्कूल सभी यहाँ के जितने भी सरकारी स्कूलों से भी भारी लगे और आने वाले जो नेक्स्ट जो बच्चे आएंगे वो उस स्कूल में कई जो साहूकार हैं जो सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल में लगाना चाहते हैं, वो खुद वो स्कूल देखकर अपने बच्चों को हमारे सरकारी स्कूल में लगाए। तो मैं सभी एसडीएमसी मेंबरान से भी चाहूंगा कि आप भी जबकि सरकार से भी फंडिंग आती है, उस सरकार का फंड का भी सही इस्तेमाल करें। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम सरकारी स्कूल को उन प्राइवेट स्कूल में जो डोनेशन के नाम पर हम सभी को लूट रहे हैं, उनकी डोनेशनों के खिलाफ भी हम एक बड़ी आंदोलन कर सकते हैं कि हम हमारे सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल बनाकर खुद के भी बच्चे, वहां के रहने वालों मोहल्ले के बच्चों को हम खुद, आप एसडीएमसी सदस्य की भी जिम्मेदारी होती है कि एसडीएमसी सदस्य बने, मतलब यही नहीं कि आप चेयरमैन बन गए, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने अपने मोहल्ले में जाएं, वो जहां पर बच्चे हैं उनसे कहें हमारे स्कूल को आए, तो तभी आपकी स्कूलें वहां पर चलेंगे। मगर अक्सर हम एसडीएमसी सदस्य कोई काम नहीं करते, यहाँ तक कि मेरे अब तक एसडीएमसी मीटिंग को बुलाते हुए हम लोग नहीं आते। और मैं दरअसल हमारे अध्यक्ष साहब को, जुबैर साहब को यही कहना चाहूंगा कि कई सरकारी स्कूलें में एसडीएमसी की 3 साल का पीरियड होने के बाद 10 साल 15 साल से वही लोग हैं। ये मेरे ख्याल से तो कई एसडीएमसी मर भी गए होंगे, मगर उसको चेंज नहीं किया जा रहा। तो मैं आप सभी संगठन के अध्यक्षों से कहना चाहूंगा कि हो सके तो जितने जल्दी आपसे एसडीएमसी की बॉडी चेंज कराएं और जो क्वालिफाई हैं, जो सच में उन जो स्कूल में पढ़ते हैं वो बच्चों के वालिद हैं, उन लोगों को आप एसडीएमसी बनाएं ताकि उन्हें दर्द होता है। अक्सर आप हमारे मोहल्ले में देखिए जो एसडीएमसी हजरात हैं, वो हजरात के बच्चे ही वहां नहीं पढ़ते। मैं कहूंगा इससे कोई एसडीएमसी सदस्य बुरा मत लगाए, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जब तक हमें दर्द नहीं होता हम उसका इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो जरूरत यह है कि अपने बच्चे ही जब वहां पढ़ने लगेंगे तो हमें तकलीफ होगी, हम उस उस्तादों को भी पूछेंगे और उस स्कूल पर भी ध्यान देंगे। तो मैं यही चाहूंगा कि जो भी सरकारी स्कूलें हैं उस एसडीएमसी सदस्यों से कहूंगा कि प्लीज आप
खुद भी उस स्कूल को प्राइवेट स्कूल से अच्छा बना सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और जिम्मेदारी को समझकर उन सरकारी स्कूलों को अच्छी से अच्छी करने की कोशिश करें। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಅದನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, SDMC ಮೆಂಬರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಯ ಸರಿಸಮಾನ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ದಮ್ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಒಬ್ಬ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಕೀಲ್ ಬಾಗ್ಮೋರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ऐ खुदा मैं तेरे नाम से आगाज करती हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता, मैं परवास करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मोहतरम इज़्ज़त इमाम वीआईपी शकील बागमारे सर, CRP हजरात, मीरे मौलिमीन, SDMC मेम्बरान अराकीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो यहाँ पर रियासती सतह पर और क्लस्टर सतह पर, ज़िले सतह पर जो मेम्बरान की SDMC मेम्बरान की जो ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಕೀಲ್ ಬಾಗ್ಮೋರೆ, ನಗರ ವಲಯ UPS ನಂಬರ್ 3 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು। ಈಗ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥ ಶಕೀಲ್ ಬಾಗ್ಮೋರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ SDMC ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾಗಿ ಶಕೀಲ್ ಬಾಗ್ಮೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಪುನರಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಒಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಈಗ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸರ್ ನದಾಬ್ ಸರ್ ಅದೇ ತರ KGS ನಂಬರ್ KGS की 3 शकील सर का मैंने उर्दू ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ SDMC ಸಮನ್ವಯ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯಾಂತರ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂಥ ಚೇಂಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಶಾಲಾ ಹಂತವನ್ನು ನದಾಬ್ ಸರ್ ವತಿಯಿಂದ UGS ನಂಬರ್ 7 ಓಕೆ
हमारे पास यहाँ पे शादियों का बाज़ार और जमातों का और सब कुछ मिलता है, फर्नीचर मिलता है। हमारे पास अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी है और कम से कम क्वालिटी का रेंज भी है। फर्नीचर में हमारे पास 7,000 से चालू है, जो हम कम से कम रेंज में हमारे बीजापुर की जनता को देना चाहते हैं। और पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। आप भी एक मर्तबा हमारे शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिए। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।